పాతబస్తీ ఫాతిమా ఓవైసీ ఎడ్యుకేషనల్ క్యాంపస్ ఓపెనింగ్ లో అక్బరుద్దీన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు. కాంగ్రెస్ ను దుయ్యబట్టిన అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ. రేవంత్ రెడ్డిపై ఫైర్ అయిన ఓవైసీ. దేశంలో ఈ రోజు కూడా ముస్లింలపై అరాచకం నడుస్తుంది. గడ్డం ఉంటే కొడుతున్నారు, నెత్తిపై టోపీ ఉంటే కొడుతున్నారు. ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో మజ్లిస్ ఉంది కాబట్టే ఎవరూ కన్నెత్తి చూడడం లేదు. ప్రజల దీవెనలు ఉన్నాయి కాబట్టే మనము బాగున్నాం. మేము ఎవరికీ వ్యతిరేకం కాదు. హిందూ, సిక్కు మరియు క్రైస్తవులకు మేము వ్యతిరేకం కాదు. దారుసలాం దర్వాజాలు అందరికీ తెరిచి ఉంటాయి. భారతదేశంలో ఎక్కడైనా అక్బరుద్దీన్ గొంతు వినపడుతుంది. కానీ ఇప్పుడు మజ్లిస్ పనితనం చెబుతుంది. నేను చేసిన పనులలో దేశంలో ఎవరైనా ఇలాంటి పని చేస్తే రాజకీయ సన్యాసం చేస్తానని అన్నారు. ఓవైసీ మాట్లాడితే అసెంబ్లీలో, దేశంలోని పార్లమెంటులో మంచి లీడర్ల మాటలు బంద్ అవుతాయి. అది చాయువాలా అయినా, గాంధీ అయినా, రెడ్డి అయినా, బాబు అయినా, రావు అయినా పర్వాలేదు. అందరితో పని చేయిస్తాము. కిరణ్ కుమార్ రెడ్డితో కూడా పని చేపిస్తాం. ఎవరెవరైనా పర్వాలేదు. ప్రభుత్వంతో మజ్లిస్ మాట ఎవరెవరైనా పర్వాలేదు. ప్రభుత్వం మజ్లిస్ పాట వినాల్సిందే, పని చేయాల్సిందే. కిరణ్ కుమార్ తో సారీ చెప్పించామని అన్నారు. నేను ఎక్కడి నుండి వచ్చానో అడిగారు. నేను, నా తాత, మా నాన్న అందరము భారతదేశంలోనే పుట్టాము. మరి రాహుల్ గాంధీ తల్లి సోనియా గాంధీ ఎక్కడ పుట్టింది? మేము మహారాష్ట్ర నుండి వచ్చామంటున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి ఎక్కడి నుండి వచ్చిండు? రేవంత్ రెడ్డి, నీకు ఆర్ఎస్ఎస్ కు సంబంధం లేదని, నీవు ఆర్ఎస్ఎస్ నుండి రాలేదు అని చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి గుడి దగ్గర వచ్చి ప్రమాణం చేయి. అప్పుడు నిన్ను కరెక్ట్ అని ఒప్పుకుంటాను. నా స్వార్జితంతో కట్టిన ఈ KG to PG ఫాతిమా ఓవైసీ ఎడ్యుకేషనల్ క్యాంపస్ ను నేను ప్రజలకు అంటే మజ్లిస్ కు సమర్పిస్తున్నాను. మజ్లిస్ అంటేనే ప్రజలు, ప్రజలు అంటేనే నేను. KG to PG ఓపెనింగ్ ను ఒక పండుగలాగా సెలబ్రేట్ చేయాలనే లేజర్ షోతో పాటు ఫైర్ వర్క్స్ చేస్తున్నాము. అలాగే మా తాత ముత్తాతల నుండి రాజకీయం చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు మూడో పిడి అంటే మా తాత ఫక్రే మిల్లత్ వహీద్ ఓవైసీ, తర్వాత సాలర్య మిల్లత్ సుల్తాన్ సలాహుద్దీన్ ఓవైసీ, ఇప్పుడు అసదుద్దీన్ అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ నడిపిస్తున్నారు. అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలని తెలిపారు. आरएसएस वाले को कांग्रेस का सदर बनाओ, आरएसएस भी काम करेगी, विश्व हिंदू परिषद भी काम करेगी और इस आरएसएस वाले को चीफ मिनिस्टर बनाना। अगर मैं गलत हूं तो हमसे बोल रहे हैं। चलो मैं कहता हूं रेवंत, भाग्य लक्ष्मी की जो मंदिर है ना चार मीनार के पास, आ जाओ, वहां पे कसम खा लो और बोल दो कि मैं आरएसएस में नहीं था। कसम खा लो और कह दो कि मुझे शर्मिंदगी है आरएसएस से वाबस्ता होने पर। कसम खा लो और कह दो कि मैं आरएसएस का दुश्मन हूं, सावरकर को नहीं मानता। कसम खा के बोल दो ना, खिस्सा खत्म। कोई बोल रहे इन्हें ताकतवर हो रहा, उन्हें कमजोर हो रहे। कोई भी ताकतवर हो जाओ, कोई भी कमजोर हो जाओ, कितना भी ताकत क्यों न मिले, हमारा सहारा जरूरी है। मैं ये बात कह रहा हूं, याद रख लो। एक वक्त फसल बोने का होता है, एक वक्त फसल तैयार करने का होता है और एक वक्त फसल काटने का होता है। और अब वक्त कौन सा है मालूम? सालार ने फसल बोई थी, फखरे मिल्लत ने फसल बोई थी, सालार ने फसल तैयार की और अब फसल तैयार है, काटने का वक्त है। समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। फिर से दोहरा रहा हूं सालार के जुमले को। हम बादशाह गर के मौक़िफ़ में, हमारे बादशाह गर के मौक़िफ़ को कमजोर होने न दो मुसलमानों। कोई भी तख्त पे हो हमारी मर्जी के बगैर नहीं बैठ सकता, इस बात को समझो। और ये लोग हमारी ताकत को खत्म करना चाहते हैं। बादशाह गर का जो मौक़िफ़ है ना, उसको खत्म करना चाहते हैं। सिर्फ एक तकरीर हुई स्कूल में तो अकबर भाई बोलने पे मजबूर हो गए। याद रख लो, मुझे अकबर भाई नहीं बोलना है,
मेरे इन सारे भाइयों को भाई बोलने वाला हमको चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी को शेर बनना नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी को अपनी कौम को शेर बनाना है। और ये इमारतों में से एक अकबर ओवैसी नहीं, आने वाले कल में 1000 अकबर ओवैसी निकलेंगे और इनको चैलेंज करेंगे और इनसे पूछेंगे कि तुमने क्या किया। आज इल्जाम मजलिस पर और फिर इल्जाम अकबर साहब। अरे अकबर साहब को कभी शौक था ना है ना कभी रहेगा। अकबर का अगर कुछ शौक है तो बच्चों को पढ़ाना, अकबर का अगर कुछ शौक है तो यतीमों के सर पे हाथ रखना, अकबर का अगर कुछ शौक है तो बेवाओं की मदद करना, अकबर का कुछ शौक है तो बेसहाराओं का सहारा बनना। हमारा और कुछ नहीं। खुदारा समझो हालात किस तरफ है। इस वक्त को मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन काम कर रही और ये इमारत मैंने अपने जेब के खर्च से बनाई। ये सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का नहीं है। लोग समझते हैं कि सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन नहीं मेरे भाई, ये सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट अकबरुद्दीन ओवैसी का खुद का है, अपने पैसों से बनाया। ये इमारत मुगलपुरे की एक इमारत अभी इफ्तिताह होना बाकी है। सलाला में इमारत, अरे मैं ये भी कहूंगा कि अभी 2 इमारतें छुपी हैं, किसी को मालूम नहीं है। 2 लाख है, एक और एक इमारत 1.5 लाख स्क्वायर फीट की तैयार है। इंशाअल्लाह ताला 1 साल में उसका भी इफ्तिताह होगा। यहां से आगे खुलेदी नगर है, गौस नगर है, वहां पर भी एक इमारत आएगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला निजामाबाद में भी ऐसी शानदार इमारत जरूर आने वाली है, निजामाबाद में भी आएगी। आज अकबर ओवैसी जो काम कर रहा है, मुखालिफीन मजलिस तनकीद करो, जरूर करो तनकीद, मगर ऐसा काम करके तनकीद करो, कुछ करके तनकीद करो। ये लोग करते कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ इल्जाम लगाना, मजलिस पे तोहमत लगाना। अरे आज हमारे स्कूल्स में 100 यतीम बच्चे, मालूम आपको, आज ये बिल्डिंग का इफ्तिताह अकबरुद्दीन ओवैसी ने नहीं किया, मैंने नहीं किया, रिबन मैंने नहीं काटी। एक यतीम बच्चे से मैंने इस इमारत के बिल्डिंग की रिबन कटवाई और उस बच्चे का नाम मोहम्मद इब्राहिम है, जो जहांगीर नगर का रहने वाला है। उसका बाप नहीं है, परेशान था। मेरे पास आई उसकी मां कि अकबर भाई मेरे बच्चे हैं, बाप नहीं है, पढ़ा नहीं सक रही। तो मैंने उस बच्चे को दाखिला दिया। अरे हमारे स्कूलों में 500 से जायद यतीम बच्चे ज़ैर तालीम हैं। नफरत करने वालों, मजलिस पे तनकीद करने वाले, तुम चाहे जितना तनकीद करते कर लो, इल्जाम लगाते लगा लो, मेरे साथ तो इन यतीमों की दुआ है। अरे मैं जिंदा हूं तो दुआएं हैं कि जो जिंदा हो। हम सनत में भी जाएंगे, एक अपैरल इंडस्ट्री भी हम डाल रहे हैं। ये जैकेट, ये शर्ट, जीन्स पैंट,
टी शर्ट, बुर्के, शर्ट शलवार, ये कपड़ों की एक इंडस्ट्री भी सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट डालने वाली है और 4000 बेवाओं को रोजी रोटी पर लगाएगी, यहां पे काम दिले आएगी। हम न सिर्फ इसमें भी जा रहे हैं, लोग बोलेंगे कि क्यों जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं जिंदा हूं, चला रहा हूं, मर गया तो कौन चलाएगा। अरे मरने से पहले मेरे इदारों को ऐसा बनाऊंगा कि वो खुद ब खुद चलते रहेंगे। मेरी मौत के बाद भी मेरे औलाद या मेरी बीवी से जाकर नहीं मांगेगा मेरा इदारा कि चलाने के लिए तनख्वाह दो। 53 लाख महाना तनख्वाह है, 10 लाख लाइट का बिल आता है, क्या मामूली है। 700 लोग, डॉक्यूमेंट्री में बताया गया 700 लोगों को मुलाजिमत मिल रही है सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट में। क्या ये अपने आप में काम नहीं, कारनामा नहीं? मुझे खुशी हो रही है कि आज ये सरों का समंदर हमारे इस काम को कबूल कर रहा है और हमारे काम की खुशी में आज यहां जमा हुआ है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका कि आपकी मौजूदगी मुझे और हिम्मत दे रही है। यह आज का ये मजमा, ये बेजुबान मजमा नहीं है, ये मजमे की खामोशी मुझे ये हिम्मत दे रही है, मुझे ये जज्बा दे रही है कि अगर बक़ैद हयात रहा और 20 बरस तो इंशाअल्लाह 20 बरस बाद 15,000 की जगह 50,000 गरीब मुसलमान बच्चों को तालीम का इंतजाम अकबरुद्दीन ओवैसी करें। हम काम कर रहे हैं। जूनियर कॉलेजेस आ रहे, 3 जूनियर कॉलेजेस, 2 जूनियर कॉलेजेस, 3 जूनियर कॉलेजेस आइंदा साल आए। आइंदा साल डिग्री भी आएगी, यहां डिग्री कॉलेज भी आएगी। और जूनियर होने दो, डिग्री होने दो। यतीम है तो सीधा अकबर ओवैसी के स्कूलों में आ जाए, उसके तालीम का इंतजाम अकबर ओवैसी करे। अगर मुतलका औरत है तो उनके बच्चों को भी हम बगैर खुराक के दाखिला दें। सीरियसली, किसी को कैंसर है तो उनको भी फ्री तालीम बगैर खुराक के। आज दार्जिलिंग स्कूल तालाब मीर जुमला के पास 1 लाख स्क्वायर फीट और हम उस इमारत को सालार मिल्लत एजुकेशनल कैंपस का नाम दिया है। वहां पर भी केजी से लेकर पीजी तक तालीम। अरे आज हमारा काम सिर्फ चंद्रायन गुट्टे में नहीं है। हमारे 2 स्कूल याकुतपुर में, 1 स्कूल चार मीनार में, मां बाकी स्कूल चंद्रायन गुट्टे में। हाँ मौजम भाई देख रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहादुरपुरे में भी करेंगे, अल्लाह ने चाहा मलकपेट में भी करेंगे। और ये बात कहूंगा कि सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट टोली चौकी कारवान में, हकीम पेट में 300 बिस्तर का दवाखाना बनाएगी। इलेक्शन के बाद उसका काम का आगाज होगा इंशाअल्लाह। अरे हम काम कर रहे हैं। बहरहाल ईशा की अज़ान का वक्त है, आप सबका शुक्रिया। और आखिर में मैं साबिर बिन ताब के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको खबर में जन्नत में आला मुकाम अता करे। आप तमाम का शुक्रिया, आप तमाम का ममनून मशकूर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम बड़े ही दूर अंदेशी के साथ काम कर रहे हैं।
अरे जवाब देना तो बहुत आसान है, खड़े रहकर कुछ भी कह देना बहुत आसान है, लेकिन हम ऐसे अल्फाज को नहीं अदा करना चाहते हैं जिसके जरिए बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, शिवसेना या सेकुलर दुश्मन, मुस्लिम दुश्मन ताकतों को ताकत मिले, इसलिए हम खामोश हैं। लेकिन आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने काम किया, मजलिस ने काम किया। आप बोलेंगे कि क्या काम किया, कैसे काम किया, कितना काम किया, तफसीलात तो मेरे पास हैं, मुख्तसरन बयान करूंगा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की मौजूदगी का असर है कि रेड्डी रहो, बाबू रहो, राव रहो, कोई भी रहो, सबसे काम कराने का जादू हमको आता है। क्या हमने राजशेखर रेड्डी के दौर में काम नहीं करवाया? क्या हमने चंद्रबाबू नायडू से काम नहीं करवाया? क्या हमने रोशैया से काम नहीं करवाया? क्या हमने कांग्रेस की आखिरी किरण बीजेपी में अंधेरा मचाने पहुंची, क्या उससे माफी मांगने नहीं लगवाई? मक्का मस्जिद के बम धमाकों के मुलजमीन से जिनको झूठे मुकदमात में महरूज किया गया था, क्या इसी किरण से हमने माफी नहीं मांगने लगवाई? अरे कोई भी रहने दो, जब हम बोलने लगते हैं ना तो हाल कैसा होता है मालूम? जैसा एक सपेरा बीन बजाता है तो पूरे साथ नाचते हैं, तो जब ये अकबर ओवैसी बोलता है तो हर कोई नाचते हैं और सुनने पे मजबूर होते हैं। ये हमारी ताकत है, ये आपकी ताकत है, आपके इत्तेहाद की ताकत है, हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं, हमारे माँ और बहनों की दुआओं का नतीजा है। ये जमात की ताकत है कि राव हो, रेड्डी हो, रोशैया हो, किरण हो या कोई हो, उनको सुनना ही पड़ता है, सुनना ही पड़ता। अरे एक ताकत है, जमात एक ताकत है। जमात कमजोर हो जाएगी तो क्या मैं कमजोर हो जाऊंगा? मेरे भाई, हम मुसलमान कमजोर हो जाएंगे। इस बात को समझो, अगर कोई मजलिस पर तनकीद कर रहा है, मजलिस को कमजोर कर रहा है, तो वह मजलिस को नहीं, आपको कमजोर कर रहा है। क्या आपको आपकी कमजोरी कबूल है? क्या आपको आपकी कमजोरी बर्दाश्त हुई है? इस बात पे गौर करो। आज किसी के पास नफरत की दुकान है तो किसी के पास मोहब्बत की दुकान है। एक कह रहा है कि मेरे पास मोहब्बत है। अरे तुम्हारे पास मोहब्बत है तो भागलपुर का फिसाद मोहब्बत की निशानी था, मलियाबाद का फिसाद, क्या रोड किला का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? क्या गुजरात का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? क्या बाबरी मस्जिद का ताला खोलना मोहब्बत की निशानी थी? मोहब्बत की दुकान चलाने वाले तुम्हारे बाप ने शिलान्यास करवाया चबूतरे पे और वहां से कैंपेनिंग का आगाज किया था। क्या यह मोहब्बत की दुकान थी? बाबरी मस्जिद की शहादत क्या मोहब्बत की दुकान है? बंबई के फिसादात क्या मोहब्बत की दुकान है? अरे 55,000 फिसादात देने वाले आज मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अरे मैं तो कहूंगा मोहब्बत की दुकान भी इनके पास है, नफरत की दुकान भी इनके पास है और खामोश रहने की दुकान भी इनके पास है। सब इनके पास है।
शायद दुनिया नहीं जानती। दुनिया जानती है इंदिरा गांधी के कारनामों को और खिदमात को भी। दुनिया जानती है राजीव गांधी के भी कारनामे और खिदमात को। दुनिया जानती है राहुल गांधी व सोनिया गांधी के भी खिदमात व काम को। बड़ी तकलीफ हुई जब मैंने पूछा कि वो कहां से आई। मुझसे कहा कि मैं महाराष्ट्र से आया। अरे मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मेरा बाप हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे परदादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे सगर दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा के दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे सगर दादा के सगर दादा भी हिंदुस्तान में पैदा हुए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी साहब, आपकी वालिदा मोहतरमा कहां पैदा हुई? तो बुरा क्यों दिख रहा? आपने मुझसे कहा मैं महाराष्ट्र से आया। मैं पूछ रहा हूं आप कहां से आए? आप सब बोलेंगे और हम कुछ नहीं बोलना। अरे हम भी अलग में जबान रखते हैं, याद रखो। अगर हिंदुस्तान में लिंचिंग हो रही है, अदाब बंद करने की बात की जा रही है, अगर हिंदुस्तान में हिजाब पर पाबंदी है, तो मैं कहूंगा हैदराबाद में हमारा इत्तेहाद, तेलंगाना में हमारा इत्तेहाद इतना ताकतवर है कि किसी की मां नहीं जली जो हमारी अदा को बंद करे। कोई हमारे बच्चियों के हिजाब को नहीं छीन सकता। ये हमारी ताकत है। खुदारा इस बात को समझो, हालात को समझो कि हालात किस तरफ है। अगर आज हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर दुश्मन कामयाब होगा। अरे आज मैं फिर से कह रहा हूं कि मोहब्बत की दुकान भी इनके पास, नफरत की दुकान भी इनके पास। कांग्रेस का सदर कौन है? हम महाराष्ट्र से आए बोले ना। इनका सदर कहां से आया? आरएसएस से आया। राहुल गांधी बोल रहे हैं एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, एमआईएम ऐसी है, हम जहां जाते हैं हमारे पीछे जाती है, वोट काटती है। ओहो, तुम उतनी दूर से एमआईएम को देख रहे, अपने बाजू चड्डी और निक्कर पहना आरएसएस का आदमी खड़ा है, वो नहीं दिखाई दे रहा। राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी आरएसएस का। और आज कमजोर होती हुई बीजेपी को यह एहसास हुआ कि तेलंगाना में हम तो कामयाब नहीं हो सकते, तो क्या करना? माहेदा